हेलो हेलो। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। 2 दिवसीय आनंद महोत्सव सभा आज दूसरा दिन और इस सभा की शुरुआत हम हमारे बैप्टिस्ट चर्च के पासवान के थॉमस जी के प्रार्थना से हम इस दूसरे दिन के आनंद महोत्सव सभा की शुरुआत करेंगे। ఓకే, అందరు లేచి నిలబడినట్లయితే 100వ కీర్తనను చదువుకొని ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఆరాధనకు మనం ముందు ప్రవేశిద్దాం. షల్ వి ఆల్ స్టాండ్ ఆన్ అవర్ ఫీట్ అండ్ వి షల్ రీడ్ సామ్ నెంబర్ 100. 100వ కీర్తనను చదువుకున్న తర్వాత ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఆరాధనలోనికి మనం ముందుకు కొనసాగుదాం. సమస్త దేశములారా యెహోవాకు ఉత్సాహధ్వని చేయుడి, సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి. ఉత్సాహగానం చేయించు ఆయన సన్నిధికి రండి. యెహోవాయే దేవుడని తెలుసుకుని ఆయనే మనల్ని పుట్టించెను. మనం ఆయన వారము, మనం ఆయన ప్రజలము, ఆయన మేపు గొర్రెలము. కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మములో ప్రవేశించుడి. కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణములో ప్రవేశించుడి. ఆయన స్తుతించుడి, ఆయన నామము గణపరచుడి. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిత్యములను, ఆయన సత్యము తరతరములను. దేవుడి పరిశుద్ధ మాటలను దీవించి ఆశీర్వదించి మన వినికిడిలో భద్రపరచును గాక. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, మీ ఘనమైన నామానికి స్తుతులు స్తోత్రములు తెలియపరచుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో 2వ దినమున మేము ప్రవేశించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మీకు వందనాలు. నిన్నటి దినమున జరిగిన ఆరాధన అంతట్లో కూడా మీ సన్నిధిని తోడుకుంచారు, అందుని బట్టి మీకు వందనాలు. ఈ దినమున ప్రభా మరి ఆరాధనను ప్రారంభిస్తుండగా చక్కని పాటలు పాడబోతుండగా బిడ్డల యొక్క స్వరాలను మీరు ముట్టండి. వారి ద్వారా మా అందరి పాటల ద్వారా మీ నామానికే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరు పొందుకోబడుతున్నాను. మీ యొక్క సేవకుని కూడా మీ సిలువ చోటును మరుగుపరచండి. బలమైన వాక్యాన్ని, ప్రజలను ఉజ్జీవింపజేసేటువంటి వాక్యాన్ని తన హృదయంలో ఉంచి తన నోటిని మీ బోరుగా వాడుకొని బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించి మీరుండి మా అందరితో మీరు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాను. చేరువచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను బట్టి మీకు వందనాలు. రావాల్సిన వారిని ప్రభా అనేక మంది ప్రజలను వారి హృదయాలు కదిలించి ప్రభా మీరు మా మధ్యలోకి తోడుకొని వచ్చి ఈ యొక్క ఆరాధనలో పార్టిసిపేట్ చేసి మీ దీవెనలు పొందుకునే బిడ్డలుగా మీరు తయారు చేసి మీ నామానికి మహిమ పొందుకోమని చేరువచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించండి. జరగబోయే ఆరాధన క్రమం అంతట్లో కూడా ఆది నుంచి అంతవరకు మీరు అధ్యక్షత వహించి మీ నామానికి మహిమ పొందుకోమని నడిపిస్తున్న వారిని కూడా కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు కూడా కోయిరు వారిని కానీ అదేవిధంగా వాలంటీర్స్ని కానీ అందరినీ కూడా దీవించి వారందరినీ మీ స్వాధీనంలో ఉంచుకొని వాతావరణం అంతటిని కూడా మీ స్వాధీనంలో ఉంచుకోమని మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు దివ్య నామములు అడిగి వేడుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్లీజ్ బి సిటెడ్. అందరూ కూర్చుందాం. धन्यवाद पार्षद साहब। मैं पार्षद साहब से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थान में जाकर बैठ जाएं और उसी तरह मैं बैप्टिस्ट चर्च के अध्यक्ष के ईशा जी से भी अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आए और अपने स्थान को ग्रहण करें। मैं अब आगे के भाग में जाएंगे। हम परमेश्वर की स्तुति महिमा गीतों के द्वारा करेंगे। मैं आगे के भाग के लिए मैं जोएल को कॉल लीड करने के लिए मैं जोएल को सामने आमंत्रित करता हूं। वे गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज की दूसरी दिन की इस संध्या में आप सबों का स्वागत है और हम आज फिर एक उत्साह के साथ, क्योंकि कल के दिन हमने एक बहुत अच्छी बात प्रभु के
दास भाई अनिल कुमार के मैसेज में हमने सुना कि हम सब धर्मी हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि उसने अपनी उस अद्भुत योजना में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया और उसके मार खाने, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा से हम सब शुद्ध हुए। हम सब आज यहाँ पे आनंदित होने का ये अवसर है कि वो जो यीशु हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, उस यीशु को जिसने हमें परमेश्वर की उस बड़ी अधिकता में जो वारिस होने का अधिकार है, उसके निमित्त हमको ऐसा बलिदान दे दिया जिसकी कोई भी हम कल्पना करें तो हमारे लिए हम उस बात को पा नहीं सकते। ऐसे असंभव कार्य को उसने हमारे लिए कर दिया। मेरे प्रियो, हम सब आनंद के साथ इस दूसरे दिन प्रभु की आराधना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा, हम सबको ये गीत आता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और हम सब तालियों के साथ प्रभु की आराधना महिमा करेंगे। आइए हम सब मिलकर गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जितने भी छोटे बच्चे ग्राउंड में इधर उधर घूम रहे हैं, वॉलंटियर्स इस बात को ध्यान में रखें, बच्चे एक जगह पे बैठे हैं। तालियां बजाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। प्रभु के बड़े नाम के महिमा हो। इस जगह में वाकई में पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है और हमारे बीच में चल फिर रहा है, इसलिए हमारे अंदर में अब जोश भर गया है। हम ऐसे ही उस परमेश्वर के उस दया के लिए हम धन्यवाद देंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और उसकी दया के लिए हम उसे महिमा देंगे। आइए हम सब मिलकर गाएंगे, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सारी प्रकृति, ये सारी सृष्टि उस महान परमेश्वर की रचना है और उसकी दया है, और उसकी दया में हम सब हैं। सिर्फ जानने की जरूरत है।
हालेलुया। जितने लोग खुश हैं वो लोग जोर से बोलेंगे हालेलुया। बहुत आवाज कम आ रही है, फिर से एक बार हालेलुया। हम लोग एक बार पंजाबी हालेलुया बोलते हैं। आपको मालूम है ना पंजाबी हालेलुया कैसे बोलते हैं? हैं? मालूम है तो जरा जोर से हाथ उठाएंगे। नहीं, या एक बार मैं बोल के सुनाऊं पंजाबी हालेलुया। हालेलुया। अब करेंगे, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हालेलुया। प्रभु के नाम की बड़ी महिमा हो। एक और गीत हम प्रभु की स्तुति में गाएंगे। तुझे धन्य कहते रहे हम, तुझे धन्य कहते रहे हम। यीशु को हम कितना भी धन्यवाद दें वो कम है, उसकी कितनी भी महिमा करें वो कम है। क्यों? क्योंकि उसने जो हमारे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता, कोई और कर ही नहीं सकता। वो काम जो परमेश्वर से हमारा संबंध टूट गया था, परमेश्वर से जब हम दूर हो गए थे, उसने उस संबंध को हमारे लिए जुड़वाया और सिर्फ उसके लहू बहाए जाने के द्वारा से, उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से, उसके दोबारा जिलाए जाने के द्वारा से आज हम वो धर्मी जीवन, वो परमेश्वर के वारिस होने का जीवन हम जी रहे हैं। जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उसके संतान होने का अधिकार दिया। वचन कहता है हम सब उसकी संतान हैं क्योंकि उसने हमें लहू के उस मोल के द्वारा से खरीद लिया है। सो आइए हम उसे धन्य कहें। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे। प्रभु ये मेरा जीवन अब तेरा है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मेरा उद्धार तेरी से है। हम तुझे धन्यवाद देंगे। ये जब तक ये मेरा जीवन है, ये जीवन सिर्फ तेरा है प्रभु। हम सब प्रभु को आज इस जगह में इस गीत के द्वारा से हम बताएं। आइए हम सब मिलकर गाएंगे। तुझे धन्य कहते रहे जब तक ये जीवन है। तालियां बजाएंगे। शिखर पर्वतों के करते हैं तुझको नमन। नदियों में बहता हुआ जल गाता है तेरा भजन। चिड़ियों की धुन में बसी है महिमा की बातें तेरी। चारों दिशाओं में यीशु फैली है चाहत तेरी।
में तेरी महक है, गलियों में तेरी हंसी, हर एक मानव में तू तेरी ही छाई बसी। हर रात को चांद तारे तेरी ही बातें करे, तेरी चमक से डरे, तूफान भी बरसात भी कहना तेरा मानते। तूने रचा ये सारा जहां, तू खुदा मानते। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। हालेलुया। हेलो, हालेलुया। एक और गीत, कैसा अनोखा तेरा प्यार लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा, तू हर पल साथ है तेरा एहसास है। ये सुंदर गीत हम सब मिलकर गाएंगे और इसको सीखेंगे भी कि प्रभु इस गीत के द्वारा से हमारी स्थिति को, हमारी अवस्था को हमें समझाएं।
सब खड़े हो जाएं एक बार, अपने अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं, आंखों को बंद करें इस गीत को सुनते हुए। प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूँ, तुझसे ये दुआ
यदि हम उसको छू लें और हम उसको पालें तो बहुत बड़े कार्य हमारे जीवन में हो जाएंगे। बाइबल बताती है कि 12 वर्ष से लहू बहने की एक बीमारी से पीड़ित स्त्री, वो बार बार इसी बात को बोलते थे, यदि मैं उसे छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वाकई में जब उसने स्पर्श किया, उस यीशु मसीह को, उसके वस्त्र को छुआ, उसका जीवन बदल गया, उसकी बीमारी दूर हो गई, उसके जीवन की वो परेशानियां मिट गई। हाँ मेरे प्रियो, इस बात का एहसास अगर मेरे जीवन में आ जाए और बार बार मैं इस बात को स्मरण करूं कि मैं उसके पास, मैं उसे छूं, तो जरूर मेरे जीवन में बदलाव आएगा। हमारे अंदर वो एहसास होने की जरूरत है कि प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूं, मैं तुझे पाना चाहता हूं। वो तो आपके पास ही है। वचन कहता, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा, अपने हृदय के द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा। हम फिर एक बार इस गीत को फिर से गाएंगे, एहसास करके गाएंगे, प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूं, आज मेरे जीवन में बदलाव चाहिए, मैं तुझे पाना चाहता हूं। आज मेरे जीवन की हर एक वो परेशानी जो प्रभु तेरे ना होने के कारण से है, मैं आज यहाँ से तुझे लेकर जाना चाहता हूँ। तू मुझे मेरे उस जीवन को, जो जीवन तूने मेरे लिए रखा है, उसे मुझे दे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसके हो जाएं, क्योंकि वो हमें पापी नहीं धर्मी के रूप में देखना चाहता है, और उसने वो कार्य कर चुका है कि हम धर्मी हैं। उस अपराध बोध से निकलकर, उस पाप बोध से निकलकर हमें धार्मिकता की बोध में वो ले जाना चाहता है। सो इस बात को हम एहसास करते हैं। फिर एक बार इस गीत को हम गाएंगे और इसे एहसास करेंगे, अपने जीवन में महसूस करेंगे। उसका प्यार कैसा होता है, उसके बगैर मेरे क्या वजूद है, कैसे हम महसूस करें। अपने मन प्रभु की ओर लगाएं, उसे देखने की कोशिश करें, हृदय की आंखों से, मन की आंखों से देखने की कोशिश करें। ऐसा अनोखा तेरा प्यार है, आया है मुझ
तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हम सब अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। हम फिर एक और गीत, एक तेलुगु गीत आपके सामने में हम गाएंगे, और जितनों को ये गीत आता है साथ में मिलके गा सकते हैं। इदिगो विनुमा ओ लोकमा यीशु राजु त्वरगा वचुचुनारु। हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। सुन लो हे लोगों, आज पुकार हो रही है। अंत के दिन नजदीक है। हम सबको तैयार होना है। इसी भाव के साथ इस गीत को हम गाएंगे। इदिगो विनुमा वो लोकमा।
अभी तक